Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher. Today I am here to continue chapter number 5, Quality, from class 7. I hope you will be listening to me very carefully and will be getting valuable points from each paragraph that I will be elaborating to you. So now let us continue. It hurts you there, he said. Those big firms have no self respect. And then, as if something had given away within him, तो मिस्टर गैसलर ने कहा, बाय टचिंग द फिंगर ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट where it was actually hurting the author. तो मिस्टर गैसलर ने कहा कि दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द पॉइंट वेयर एक्चुअली इट इज़ हर्टिंग यू. और उन्होंने कहा कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, फर्म्स होती हैं, दे एक्चुअली डू नॉट हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट. इनकी कोई अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती. एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन अवे विद इन हिम. और आफ्टर सेइंग सो he got he got relaxed, कि जैसे उनके मन की एक बात बाहर आ गई हो. उन्होंने अपने मतलब अ काइंड ऑफ बर्डन ही हैड ऑन हिज हार्ट. तो एक मन में जो परेशानी थी, दुख था, किस चीज़ को लेके, कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं एंड वी डू नॉट हैव एनी नेम. वी पीपल आर नॉट फेमस एज द कंपनीज आर, as the industries are. He spoke long and bitterly. वो काफ़ी देर तक बोलते रहे. He kept on speaking long and bitterly about the industries that deals in boots. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and the hardships of his trade. It was the first time when I realized the person who was actually talking to me, communicating to me regarding his business, regarding the conditions and the hardships of his business. ऐसा पहली बार था जब उन्होंने अपने बिजनेस को लेके, अपने काम को लेकर मुझसे बात की थी. It was the first time when he talked to me regarding his business, ups and downs in his business. Now let us move ahead, my dear students. They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. उन्होंने कहा, मिस्टर गैसलर ने कहा कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, they get they get boots, they get shoes. इनके पास सारी चीज़ें होती हैं, राइट, बट दे जस्ट गेट इट बाय द एडवर्टीजमेंट, कि ये लोग अपना एडवर्टीजमेंट करके फेमस हो जाते हैं, नॉट बाय वर्क. ये इतनी मेहनत नहीं करते एज वी पीपल डू. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस who love our boots. It comes to this presently, I have no work. देखिए, इन्होंने बताया कि ये जितने भी ब्रांड है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, दे जस्ट टेक इट फ्रॉम अस. ये कंपनियां हमसे शूज़ लेकर जाती हैं और अपना एक टैग ये उस पर स्टिक कर देते हैं, चिपका देते हैं, right? And they just sell our boots to them who actually love our boots. उन लोगों को हमारे बूट्स दे देते हैं जो हमारे बूट्स पसंद करते हैं. और आप देख सकते हो, मीन्स दीज डेज आई डो नॉट हैव वर्क. आजकल मेरे पास कोई काम नहीं है. एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और हर साल ये कम होता जा रहा है. You will see.
And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. When Mr. Gessler was talking to me, so it was the first time when I had a look on his face, having some wrinkles. उनका चेहरा उदास था, चेहरे पे हल्की हल्की सी लाइंस थी, राइट. और मैंने पहले कभी उनको इतना उदास नहीं देखा. It was the first time when I looked him, he looked sad. He looked sad. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. So I was listening to Mr. Gessler intently. मैं उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था. The words he was speaking, it was quite bitter. वो काफ़ी कड़वाहट भरे words थे. And it seemed there seemed some kind of pain in his voice. Even he talked about the struggle that he made. उन्होंने जो मेहनत करी उसके बारे में भी बताया. अब थोड़ी देर बाद मीन्स आई हैड अ लुक. मेरी नज़र जब उनकी दाढ़ी की तरफ पड़ी, तो जब पिछली बार मैं मिला था, व्हेन आई मेट हिम लास्ट टाइम, सो आई फाउंड इट रेड, right? But now means I can see some gray hairs there seemed suddenly in his red beard. उनकी लाल दाढ़ी में कुछ ग्रे कलर के बाल भी नज़र आ रहे थे. And it was just because of pressure. It was just because of not having work. क्योंकि उनके पास अब कुछ काम नहीं था. As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pair. तो जितना भी कहना था उन्होंने कहा. Means as much as he could say, he kept on saying about the brand, about the boots. राइट. क्योंकि वो बूट्स बनाते थे और बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे बूट्स लेकर जाती थी, अपना टैग लगा लिया करती थी. उनका कोई नाम नहीं है, कंपनी का नाम है. तो इस तरीके से बहुत सारी बातें उन्होंने की. सो अब ऑथर ने कहा इन कपल ऑफ मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स. तो मैंने कुछ मिनट्स में ही उनको काफ़ी सारे ऑर्डर दे दिए बूट्स के. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर. और जो काफ़ी चले, पहले के कंपैरिजन में काफ़ी चले. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. एंड आफ्टर दैट टाइम आई couldn't get time. Even I did not have time just to go to him at least for 2 years. तो 2 साल तक मैं उनके पास नहीं गया, because I didn't need to go over there, because I was not having any work related boots so that I could go to him. Now let us move ahead, my dear students. It was many months before my next visit. तो मेरी जब नेक्स्ट विज़िट हुई तो उससे पहले मैं उनकी दुकान पर गया. It was many months before. काफ़ी महीने पहले की बात है. बिफोर माई नेक्स्ट विज़िट, मेरी नेक्स्ट विज़िट से कई महीने पहले. दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर. जब मैं उनकी दुकान पर गया, व्हेन आई वेंट टू हिम, तो ऐसा लगा कि उनके बड़े भाई वहाँ पर हैं. हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, जिन्होंने अपने हाथ में एक लेदर का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था. वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू? सो एज सुन एज आई एंटर्ड, देन आई ग्रीटेड हिम, हाउ आर यू मिस्टर गेस्लर. मैंने उनसे कहा कि मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं. ही केम क्लोज, वो मेरे काफ़ी नज़दीक आए. एंड पियर्ड एट मी, मुझे बड़े ध्यान से देखा. आई एम प्रीटी वेल, मैं बिल्कुल सही हूँ. ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड. लेकिन जो मेरा बड़ा भाई है वो मर गया है. ही इज़ नो मोर. क्या कहा उसने? माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, कि जो मेरे बड़े भाई हैं
वो इस दुनिया में अब नहीं रहे. एंड आई सो दैट इट वॉज इन नीड हिमसेल्फ बट हाउ एज्ड एंड व्हेन. मैंने बड़े ध्यान से देखा. आई लुक्ड एट हिम वेरी इंटेंटली एंड फाउंड दैट इट वॉज मिस्टर गेस्लर, कि वो मिस्टर गेस्लर ही थे. बट हाउ एज्ड, लेकिन उनकी उम्र अब वो काफ़ी एजड हो चुके थे. एंड इवन लुक्ड वीक एज वेल, वो काफ़ी कमज़ोर भी लग रहे थे. एंड नेवर बिफोर, जो पहले कभी नहीं लगते थे. Had I heard him mention his brother, much shocked, I murmured, "Oh, I'm really sorry." तो मैंने पहले कभी as I used to talk to him, so I never found him talking about his brother. तो मैंने कभी उन्हें पहले कभी अपने उनके भाई के बारे में बात करते हुए नहीं सुना. तो मैं काफ़ी I became so much emotional having heard the bad news. I murmured, मैं अपने थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ में बोला, "Oh, I am sorry." मुझे अफसोस है इस चीज़ का. Now let us move ahead. Yes, he answered, he was a good man. उन्होंने बताया, मिस्टर गेस्लर ने बताया, मिस्टर गेस्लर told me that his elder brother was a very good person. उनके जो बड़े भाई थे वो बहुत अच्छे आदमी थे. He made a good boot. वो बहुत अच्छे बूट्स बनाया करते थे. But he is dead, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है. He is no more in this world. And he touched the top of his head. ऐसा means after saying so, he touched the top of his head. उन्होंने अपने सिर का जो सबसे टॉप हिस्सा है उस पर अपने हाथ लगाया. Where the hair had suddenly gone, जहाँ पर अब बाल नहीं थे. As thin as it had been on that of his poor brother. और यही हालत उनके बड़े भाई की भी थी, उनके सर पर बाल नहीं थे. To indicate, I suppose, the cause of his death. Actually, it was a kind of gesture he was having while telling to the author about the cause of his brother. Do you want any boots? क्या तुम्हें कोई boots चाहिए? And he held up the leather in his hand. और उन्होंने अपने हाथ में एक लेदर का एक टुकड़ा था उनके हाथ में. It's a beautiful piece. देखो ये कितना खूबसूरत पीस है. देखो ये कितना खूबसूरत पीस है. Now let us move ahead, my dear students. I ordered several pairs. It was very long before they came. तो मैंने when he asked me about the boots, तो मैंने उनको बोल दिया, I ordered several pairs. मैंने उनको काफ़ी सारे ऑर्डर दे दिए. उन्हें आने में काफ़ी टाइम लग गया. It was very long before they came. But they were better than ever. लेकिन इस बार जो बूट्स थे वो पहले से बहुत अच्छे थे. हाँ, one simply could not wear them out, कि कोई अगर उन्हें पहनेगा तो आसानी से घिस नहीं सकता था. And soon after that I went abroad. और जल्द ही उसके बाद means after that after meeting Mr. Gessler, तो उसके बाद में I went abroad, मैं abroad चला गया. So my dear students, that's enough for the day. I hope you must have understood. Thank you very much. The rest part of this chapter will be taken next time. Thank you so much.